because initially I never thought of being a makeup artist. I inaugurated a fresh branch at Madhu Vihar with a bigger space, with a better facility, and this happened. This tragedy happened. Three days के बाद ही this was announced कि वो shut down करना है. मेकअप को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि मेकअप आपको वो दिखाता है जो आप नहीं हो. Welcome to another episode of the EdJ Show. In this super special episode, we have an entrepreneur who's into the business of makeup and skincare. With more than 7 years of experience and more than 2,000 plus clients all across India, I can say pan India. So, apart from being a renowned makeup artist, she's also an educator into this teaching of self makeup and a lot of stuff, a lot of exciting stuff. So, to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor to have the one and only renowned makeup artist Tripti Garg on my podcast. So, ma'am, आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है मेरे इस podcast में. Thank you so much, Harsh, for inviting me to your show, which is the HJ Show. And I'm absolutely feeling honored to be a part of this show. Thank you so much for considering me for this. Thank you so very much. All right. So, well, great to have you on this podcast. So, first of all, before बहुत ही ऐसी interesting conversations पे जाएं, हम काफी चीजों के बारे में, of course, हमारी चर्चा होगी. सबसे पहले, I would like to know about your prior background, कि how you got into the makeup business of the skincare and all that. So, over to you. Absolutely. कहते हैं कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो डेस्टाइन्ड होती हैं. सो आई थिंक मेकअप इंडस्ट्री वाज वन, बिकॉज इनिशियली आई नेवर थॉट ऑफ बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट. मैंने लाइफ में कभी मेकअप का शौक बचपन से था. आई यूज्ड टू डू लव मेकअप, बट कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली मेकअप इंडस्ट्री में एंटर करूंगी. एंड टू एवरीबॉडीज सरप्राइज, आई वाज अ टीचर. And I used to teach economics and business studies to my students. Okay. And that is how my financial career started. And after a while, I was realizing कि एक routine है, आप home tuitions ले रहे हो, आप जा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो. So there is nothing really, risk taking about it. There is nothing that is exciting about it. And one fine day, one of my friend called me up, कहती यार मैंने अभी नया salon बनाया है और for some reasons मुझे shift करना है और I don't want to shut this venture down. So I need a person जो monthly basis पे मुझसे ये ले ले और उसको run कर ले. And I had some savings those time, तो मैंने उनको बोला, उनसे बात हुई मेरी, and next day onwards I just took over her place, and that is how I entered the salon industry. So that is what all about it. And as far as the makeup is concerned, initially 3 months I was trying to learn a lot about beauty and makeup and everything. And then I realized that being an entrepreneur, being an owner of a place, I should also have some skills. Then I pursued my first makeup education from Star Academy, and I enrolled for a makeup course. And from then onwards, this journey is just rolling. Yes. May I know the year ये किस साल में आपने you got into this? I started in 2017. So like down the lines, like 7 years. 2017. Okay. So तब आपने after that, जैसे आपने, as you told कि आपने इसका एक कोर्स किया. After that, of course, you developed a saloon or something like that. उसके बाद? Yes, that was the initial one जो मेरी friend का था जो मैंने take over किया था. I was running that salon, and then when I developed my makeup skills, I thought to reach to a better location जहाँ पर makeup के लिए लोग आ सकते हैं. Then I shifted my branch to Madhu Vihar, and then I opened up my second branch in Mayur Vihar phase 2. So that is how I used to have 3 branches at a time. One at IP Extension, one at Hasanpur, and one at Mayur Vihar phase 2. So that is how it was. If I'm not wrong, ये सारे East Delhi में ही आते हैं. Mayur Vihar, Madhu Vihar तो पता है, and this third one, वो भी I guess वहीं East Delhi में आता है. All the 3 branches were, yes. East part of Delhi. Okay. So may I know initially the kind of one of course makeup itself explanatory कि किस तरह के आपको clients मिलते हैं, but थोड़ा आप उसको और brief कर सकते हैं कि वो was it like for organization जब B2B थे या ज़्यादा इस तरह का, जैसे शादियों का तो of course वो होता ही है, थोड़ा उसको आप और elaborate कर सकते हैं. हमारे IP extension में ना बहुत सारे ladies club हैं where we connect for Dandiya nights, we connect for Diwali nights and everything. So that is exactly where my makeup journey started, because I got the calls कि हमें डांडिया नाइट के लिए रेडी होना है, तो वी वांट टू गेट रेडी एंड एवरीथिंग. तो वहां पर मेकअप्स किए, देन दे अटेंडेड द इवेंट, देन दे गॉट द कॉम्प्लीमेंट्स. फिर सबने पूछा तुमने मेकअप कहाँ से कराया, तो दे वर लाइक हमने किसी से मेकअप कराया. सो दैट इज हाउ दिस एक्चुअली स्टार्टेड. एंड लेटर और सूनर देन वेडिंग, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट है जो वेडिंग्स में मेकअप्स होते हैं.
So that has become the niche of my makeup journey. ओके, सो इट्स लाइक ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज है जो कह सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा Absolutely. कि ओके फाइन। सो उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे करके शादियों के और जैसे आपने बताया जैसे लेडीज क्लब जैसे डांडिया नाइट्स दिवाली उस तरह से आपको और काम मिलता गया। Yes, yes, yes. ओके फाइन। सो further one more thing, as you have also stepped into education, ठीक है, एजुकेशन में स्पेसिफिक जो मैं साउंडेड रियली इंटरेस्टिंग जैसे आप कहते हो सेल्फ Yes. मेकअप जो होता है यू ऑल्सो टीच दैट, आप ऑनलाइन वगैरह सिखाते हैं, बट उससे सबसे पहले एज अ ले मैन मैं समझना चाहूंगा व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट सेल्फ मेकअप, क्यों जरूरी है, और सेकंड पार्ट जब आप एक्सप्लेन करोगे क्या इससे रिलेटेड काफी मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, अगर आप ये दो पार्ट में अगर कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। Absolutely, I would love to talk about it because that's my latest venture. Self makeup education is my heart. मुझे ऐसा लगता है फॉर अ फीमेल, जैसे आप खाना बनाना सीखते हो, नई नई रेसिपीज ट्राई करते हो, तो आप एक बहुत प्यार के साथ उसको बनाते हो और आप बहुत Yes. एक्साइटेड होते हो कि आप अपने परिवार के लिए खाना बनाओ. यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर इट, बट देन यू फील अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग कि हाँ आप एक जेस्चर होता है. सिमिलरली ड्राइविंग स्किल, अब पहले बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन नहीं थी, रिसेंटली फीमेल्स आर गेटिंग इनटू इट क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है. सो मुझे भी लगता है कि सेल्फ मेकअप एजुकेशन is almost like developing a skill that is going to help you over a lifetime period. एक बार आपने सीख लिया. और क्यों मेरे को ऐसा लगा कि सेल्फ मेकअप एजुकेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज वेन एवर आई गो फॉर द वर्क, वेन्यू पे जाते हैं हम, वहाँ पर बहुत सारे लोग स्टे करते हैं, वेडिंग के लिए आते हैं, बिकॉज ऑफ मनी ऑल्सो दे कॉम्प्रोमाइज. एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक गुड, और वेडिंग में इतने सारे आइटनरीज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मेन जो वेडिंग वाला दिन है उस दिन तो दे हायर मेकअप सर्विसेज, बाकी दिन पे दे जस्ट कॉम्प्रोमाइज. तो बहुत बारी हमारे पास भी होता है रूम में, पीपल कम, आप प्लीज लाइनर लगा दोगे, मुझे लाइनर लगाना नहीं आता, या देखना मैंने फाउंडेशन ठीक लगाया. तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वो लूज होता है उनका, लेकिन एक मेकअप Yes. आर्टिस्ट से मेकअप करा के दे फील मोर कॉन्फिडेंट. बट देन मनी इज अ वेरी बिग कंस्ट्रेंट. Of आप course. 4-5 अगर फंक्शन है वेडिंग में, तो आप 10-12 हजार रुपए तो एक वेडिंग पे नहीं लगाओगे अंटिल इट्स वेरी क्लोज वेडिंग. तो मुझे लगा कि सेल्फ मेकअप एजुकेशन ऐसा है जो बहुत जरूरी है, सभी फीमेल्स को आना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आपके अंदर कोई फ्लॉज हैं तो उसको लेके आप बैठ जाओ और डीमोटिवेट हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ कि मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा क्यों है, मेरी हाइट ऐसी क्यों है, मेरे फीचर्स ऐसे क्यों है. सो यू शुड नो हाउ टू टैकल विद दोज इम्परफेक्शंस. सो दैट इज व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट. दैट इज व्हाई आई हैव नेम्ड इट एज सेल्फ लव कोर्स. आप खुद से प्यार करो. आपको जैसा Right. स्किन कलर, आपके जैसे फीचर्स, आपको जैसी बॉडी भगवान ने दी है, आपके पेरेंट्स की दी हुई है, आप उसको रेस्पेक्ट करो. और मेरे लिए मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप कैसे खुद को कैरी करो. Right. आपको जो फिजिकल स्ट्रक्चर मिला है वो गॉड का दिया हुआ है, लेकिन आप खुद से किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हो उस पे आप काम कर सकते हो. सो वाया दिस कोर्स आई एम ट्राइंग टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ नॉलेज टू माय पीपल. राइट. सो जैसे आपने कहा कि लुकिंग प्रेजेंटेबल, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कि शादी में जा रहे हो या कोई पार्टी में जा रहे हो. आज के समय में सपोज यू आर एन एंटरप्रेन्योर, ऐसे कई देयर आर सो मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो कहीं पे ऐसा होता है वो टेडेक्स पे जाते हैं या फिर कहीं दे हैव सम कंपनी प्रेजेंटेशन, तो वहां पे भी तो ऑफ कोर्स एक प्रेजेंटेबल लगना वो एक एजुकेशन नेसेसरी है काफी. एब्सोल्युटली. इफ मतलब अभी रिसेंटली हमारी एक वर्कशॉप होने वाली है विद द कॉर्पोरेट्स, तो द कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग सच वर्कशॉप्स फॉर फीमेल्स, बिकॉज आप जब भी काम के लिए बाहर निकल रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपको हमेशा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लगना है, बहुत लाउड मेकअप में आपको जाना है, बट एक बेसिक जो जैसे डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशंस हैं या एक्ने प्रॉब्लम्स है, कुछ भी ऐसी इम्परफेक्शन जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, आप उसको टेम्पररली फिक्स कर सकते हो इफ यू नो द स्किल. और बी इट you are a professional, you are a doctor, you are a blogger, you are into social media, you into anything. आप किसी से मिलने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि आप प्रेजेंटेबल लगो. डेफिनेटली पैकेजिंग का तो बहुत बहुत बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट होता है. एक प्रोडक्ट है जिसकी ओके पैकेजिंग है, एक प्रोडक्ट है जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो पहले हमारी नजर डेफिनेटली उस पैकेज पे पड़ेगी जिसकी पैकेजिंग ज्यादा खूबसूरत है. सो बीइंग प्रेजेंटेबल, आई फील दैट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. राइट. और ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि कंपनीज इस तरह की ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट कर रही है, जैसा आपने कहा कि अपने स्टाफ के लिए. ये आप थोड़ा अगर और एलैबोरेट कर सकते हैं इस बारे में, किस तरह की कंपनीज और किस तरह की ये ट्रेनिंग्स होती है, क्या ड्यूरेशन होती है इसकी? बेसिकली दीज आर एमएनसीज, और वहां पर फीमेल्स जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि दे आर सिटिंग अलोंग विद द टीम, ड्यूरिंग अ मीटिंग और व्हाटएवर, दे शुड लुक प्रेजेंटेबल. क्योंकि क्लाइंट से जब आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है.
once you enter the conference hall, once you enter the meeting room, it makes a lot of difference आप कैसे अपने आप को carry कर. So that Yes. impact is very, very, very important. And I think over a period of time, people are realizing the importance of self-grooming. What should I say? And self-makeup is Self-grooming. just a part of it. Yes, it's an element. And I think with time, people are realizing कि females कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ तो ऐसे हैं जिनको शौक नहीं है, वो दे आर लाइक कि नहीं हमें तो मेकअप अच्छा नहीं लगता, बट अच्छा लगना किसको बुरा लगता है? अगर करेक्टली आपको पता है कि आप अच्छे कैसे लग सकते हो और आपको पता है कि आप ओवर नहीं लग रहे हो, आप क्लासी लग रहे हो, तो डेफिनेटली, तो दैट इज वन रीजन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ कंपनी. दे वर लाइक कि डू यू टेक मेकअप वर्कशॉप्स, डू यू कंडक्ट देम? आई वाज लाइक यस आई डू. So they were asking me ki if we conduct a 1 hour makeup workshop for our employees, especially the females, what would you charge and everything. So I've sent the proposal and most probably will close this workshop upcoming month. But it's good to know because see, मैं एक चीज से correlate कर सकता हूँ. This is something different, not out of the context. As you know that I am a voice artist, so मैं किसी कंपनी का, और ये वाकई में ई लर्निंग का मैं कोर्स कर रहा था, मतलब मुझे बोलना था वेलकम टू सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स. तो उसमें क्या था, इट वाज अबाउट द एटिकेट्स टू विजिट एन ऑर्गेनाइजेशन. तो फॉर मेल्स फीमेल्स कुछ ऐसे लिखे हुए थे. सो आई थिंक द कॉर्पोरेट कल्चर इज वर्किंग फॉर सेल्फ ग्रूमिंग, क्योंकि कहीं पे जब इंटरेक्शन होती है, क्लोजिंग अ डील ऑल्सो इज अ बिग फैक्टर. क्लोजिंग अ डील, और वहां पे ये एटिकेट्स, ये जो आप कह रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग और लुकिंग प्रेजेंटेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Very important. Very. Sure. So, okay, good, great to know about that. So, of course, ये जो corporate का होगा, ये तो of course offline होता है, face to face. Yes. Coming on the online, so online training. So, may I know how frequently you conduct it? किस तरह से होता है ये, मतलब कितना frequently आप करते हो? And what is the way to reach out to you? जिस तरह से अगर suppose they want to know, अगर जो भी अगर suppose इस episode को भी लोग सुन रहे हैं, what is the way to reach out to you for enroll for your course? I tell you, I started my self makeup education journey with the offline courses. Of course, my close circle, my friends who used to ask me, यार मेकअप सिखा दे, तू इतना अच्छा मेकअप करती है, अब हम तेरे को बार बार नहीं बुला सकते, हमें सिखा दे. तो that is how my first batch was created. It was a group of my own friends and relatives, and that is how I started. But then I realized after a period of time that there's a geographical boundary. Everybody Yes. cannot come to my place. Of course. If there is somebody sitting at another state, will not obviously travel. Another country also. Another country also. Yeah. So they'll not be coming all the way to just to learn the self makeup. So that is how I decided ki okay fine, I'll enter the online course education. And I took up few classes also from renowned makeup artists to understand how do they conduct, how do they keep the essentials, everything. And so recently I started my online batch, and then again the same timing problem. Somebody is saying my kids go to school, I cannot take class in the evening. Somebody is saying my husband is home, I cannot take class in the afternoon time. So now recently what I have decided is I'll take online sessions 1-to-1. So that is I'm closing the recent online, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार फीमेल्स, अब जब मैं कोर्सेज ले रही हूँ, स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं फील कर रही हूँ कि बहुत सारी चीजों को लेके ना पीपल आर नॉट एक्सेप्टेंस नहीं है उनके अंदर. वो एक बैच में कंफर्टेबल नहीं फील करते टू शो देयर इम्परफेक्शन, कि यार मेरे को डार्क सर्कल्स है, मेरा स्किन ड्राई हो जाता है, या मेरे को सो एंड सो प्रॉब्लम है. When I'm dealing with them 1-to-1, they are more comfortable. They are coming out openly कि हमें ये बात कर सकते हैं उस पे. Plus budget also. Let's suppose I'm recommending a product in a batch कि इस brand का भी ये product ले लो, this is for 1000. Two of the females are saying okay fine 50 हमारे लिए order कर देना, बाकी दो चुप बैठे हैं, वो बोल नहीं पा रहे कि हमारे बजट में नहीं आ रहा. Everybody has a budget, everybody has a pocket. अब 1-to-1 में क्या हो रहा है, they are absolutely क्या बात हो सकती है. Exactly. So that is what it is. और ऑनलाइन कोर्स को रीच आउट करने का सबसे आसान तरीका है मेरा इंस्टाग्राम पेज. I have a link over there. I have highlights over there. जितने अभी तक हमने स्टूडेंट्स क्लोज किए हैं, उन सबका जो भी day 1, day 2, day 3 हमने हाईलाइट्स वहाँ पे बनाना है. There's my WhatsApp number over there. So anybody can contact and I can share the brochure of my online course. And it's just a 3 days course. It's not a very long duration course कि आपको परेशान होना. It's just a 3 days course, and I provide with my ebook also along with that course, and the certification is also there. Yes. Okay, so it's by the name, the Instagram handle is by the name Tripti Garg Makeup, if I'm not wrong. Yes. I have 2 Instagram handles. One is for the makeup services that I do for my clients, and another one is for education, which is Tripti Garg Educator. So Tripti Garg Educator basically is the page for makeup education. So okay, so 2 things are going parallelly. एक तो आपका सर्विसेज, उसका अलग हैंडल है, और एक जो है जहाँ पे सेल्फ मेकअप या जो जैसा आपने जिक्र किया.
राइट. Yeah. सो वन मोर थिंग, कोई भी इंडस्ट्री होती है, वेदर मैं चलो अपना ले लूं वॉइसिंग या जैसा ब्यूटी, सेल्फ ऐसे सेल्फ मेकअप, स्किन केयर, मेकअप, Hmm. तो हर जगह बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एज, तो हर चीज के बारे में आपको ब्लॉग्स, वीडियोस, मे बी पॉडकास्ट ऑल्सो इन द ऑडियो फॉर्मेट, आपको हर चीज के बारे में मिलेंगे. अब जहाँ पे लोग नॉलेज शेयरिंग करते हैं तो वहां पे कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, Hmm. मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं, आई यूज द राइट वर्ड. मेकअप Yes. को लेके भी काफी मिसकंसेप्शंस होंगे, सो इसके बारे में अगर हम थोड़ी इसमें बातचीत कर सकते हैं. मेकअप को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि मेकअप आपको वो दिखाता है जो आप नहीं हो, जबकि मैं आप सबको ये बोलती हूँ कि मेकअप आपको वो ही दिखाएगा. करेक्ट मेकअप वही है जो आपको वही दिखाएगा जो आप हो. अगर जैसे आप हो और वैसे आप आफ्टर मेकअप नहीं दिख रहे हो, दैट मीन्स कि आपने गलत मेकअप ही अप्लाई किया. सबको लगता है कि अगर हम आई मेकअप करेंगे हमारी आईज छोटी लगती हैं, आफ्टर मेकअप चिंकी लगती हैं, आईब्रोज बियर्ड लगती हैं, फेस हैवी लगता है. ऑब्वियसली अगर आपने गलत टेक्निक के साथ गलत प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर दिया है तो आप वो नहीं दिखोगे जो आप हो. दैट इज वेयर द आर्ट ऑफ करेक्ट मेकअप कम्स इन द पिक्चर. अगर आपको करेक्टली अपना आईब्रो का कलर पता है, यू कैन नॉट अप्लाई ब्लैक color eyeshadow to everybody for eyebrows. Somebody has brown, somebody has gray, somebody has dark brown, somebody has gray brown. So you need to know all this. Similarly for the foundations, for the blusher, आप सेम कलर का ब्लशर सब स्किन टोन पे नहीं लगा सकते. अगर आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से करेक्टली पता है कि दिस शेड इज फॉर यू, इट विल नॉट लुक डिजास्टर्स. You should have a certain knowledge about the products and the techniques. Then makeup will definitely hide your imperfections and make you look all the more beautiful. And you will not change as a Right. person कि आप कुछ और दिख रहे हो और अब आप कुछ और दिख रहे हो. No, राइट, doesn't. राइट. Yeah. नॉलेज होनी जरूरी है इसमें. इनफैक्ट कोई चाहे कोई भी चीज हो, चाहे अगर आप जैसे वर्कआउट के लिए जाते हो तो व्हाट सप्लीमेंट्स यू आर सपोज टू टेक, अगर वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं डजंट मीन कि वो आपके लिए भी काम करेंगे. Exactly. एंड स्पेसिफिकली कमिंग ऑन मेकअप, अगर वो जो होता है ना, जैसे यू माइट लुक गुड और यू इट माइट लुक डिजास्ट्रस. मतलब आप चाहते हो, आप बात कर रहे हो सेल्फ ग्रूमिंग की, अपने आप को वो प्रेजेंट करने की, बट वो फीलिंग वो आहट वाली आ रही है, डरावनी वाली. जिस किडिंग, just kidding, coming on that. And the ladies have this phobia ना, mostly cases में whenever I start with the makeup, although they know my taste, और मेरे पेज पे क्योंकि जैसा मैं काम करती हूँ वो एक घूमता जा रहा है तो वैसा ही काम आता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली पेज वैसे ही बिल्ड हो गया है. तो बेसिकली माय नीश इज सॉफ्ट एंड सटल मेकअप. There is no dramatic transformation in my makeup. So if you check my page, all the transformations will be very soft and subtle. ऐसा नहीं कि the person was something else, the person is looking something else. Brides के केस में I don't do drastic transformation. तो बिफोर मेकअप दे यार मेरे हस्बैंड को ना मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत गुस्सा करेंगे, ऐसा मेकअप करना जो उनको पसंद आ जाए. तो बट आई हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैं बोलती हूँ आप मेरे को अपने हस्बैंड का फीडबैक शेयर करना. पहले मैं क्लाइंट्स को बोलती पहले थी आप उनका अपना फीडबैक शेयर करो. नाउ आई आस्क देम अपने हस्बैंड का फीडबैक शेयर करना if they were okay with your final looks, and by God's grace things are in place. Yes, नाइस. yes. मतलब थोड़ा एक नेचुरल लगे. बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे कभी कभी बहुत ओवर हो जाते हैं, तो हर कोई भी चीज होती है, मतलब किसी भी चीज की जैसे अति ठीक नहीं है, तो वैसे एग्जैक्टली ठीक है. आप थोड़ा सा मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, फैशनेबल होना, ट्रेंडी होना बहुत अच्छी बात है, सब चीज के साथ अपडेटेड होना बहुत अच्छी बात है, बट जरूरी नहीं है हर चीज हर एक के लिए बने. If there's a trend following about wearing certain clothes or wearing certain kind of makeup or certain kind of hairstyle, doesn't mean that is for everybody. आप ये सोच के मत कंफ्यूज होइए कि हम लेटेस्ट में हैं, हम ट्रेंडी हैं, स्टाइलिश. आप देखिए आपके ऊपर क्या अच्छा लगा. इफ यू मेक द करेक्ट चॉइसेस, आप कभी भी अजीब और डिजास्टर्स लगोगे ही नहीं. यू शुड नो योर बॉडी टाइप, यू शुड नो योर स्किन कलर, यू शुड नो योर स्किन टाइप. तो गलत होने के चांसेस ही नहीं होंगे. राइट. और जो आप जैसे कह रहे थे ना, ट्रेंडी एंड ऑल, ये मे बी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया, कि लोग होते हैं ना, जैसे उसके लिए काम कर रहे हैं तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए. बट हर किसी के लिए मे बी इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ मेकअप, इन टर्म्स ऑफ वट एवर, वेदर इज जिम, सप्लीमेंट्स, जैसा मैंने जिक्र किया, तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर और जो सबकी अपीयरेंस अलग अलग होती है. तो अपने लिए क्या सही होना चाहिए, वो एक चीज बहुत जरूरी है. एंड नॉट जस्ट फॉर मेकअप, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी सेगमेंट इट्स नेसेसरी. फॉर एवरीथिंग, बी इट एनीथिंग, बी इट योर फुटवेयर. इफ समबडी सेज कि हील्स बहुत ट्रेंड में है, बहुत क्लासी लगती है, यू चेक योर कंफर्ट फर्स्ट. आप पहनकर वॉक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. अगर वो आपको पेन दे रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू वॉक और यू आर नॉट एबल टू डांस एंड एंजॉय इन अ पार्टी, व्हाट इज द यूज ऑफ wearing the heels then? Right. You have to check your comfort first before getting into that stylish era. You should check your comfort first. That's how I believe about being stylish. Comfort is the most important Comfort, element. yes. Yes. That should be the most important element.
Of course. Okay, one more thing. So this is about you being an entrepreneur. अब जैसे आपने कहा आपने 2017 में शुरुआत की, यस। हर बिजनेस में ऑफ कोर्स चैलेंजेस आते हैं, एंड चैलेंजेस एक दूसरा एक बिजनेस का ही मतलब एक उसका एक पार्ट ही है ऑफ कोर्स जो डेली बेसिस पे होता है। अब करेक्ट। अगर आपने 2017 में शुरू किया तो ऑफ कोर्स एक चैलेंज तो बाय डिफॉल्ट है, बीच में आया था 2020, 2020 21। तो उसमें ऑफ कोर्स एज यू टोल्ड कि आपका पहले जैसे यू यूज्ड टू हैव लाइक होता है ना जैसे सलून वगैरह आपका आपने उस दौर से शुरू किया था। तो क्या ये डिफाइन कर सकते हो, ये थोड़ा आप अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर कर सकते हो कि चैलेंज तो रहा होगा, कोविड के टाइम सब बंद हो गया था, काम धंधा ही सबका बंद हो गया था, यस। इसमें कैसे आपने आपने ओवरकम किया इस चीज को? आई टेल यू हर्ष, इसमें क्या हुआ था कि जैसे सडनली लॉकडाउन हुआ और मतलब इसको अनफॉर्चुनेटली कहूंगी मैं, मेरा जो मधु विहार का ब्रांच ओपनिंग हुआ था उसके जस्ट आफ्टर 3 days दिस थिंग हैपेंड। आई इनॉग्रेटेड अ फ्रेश ब्रांच एट मधु विहार with a bigger space, with a better facility, and this happened. This tragedy happened. Three days के बाद ही this was announced कि वो shut down करना। But then I did not give up. I converted my business model into home visits and freelancing because I had a team. मुझे पता था मैं अपने बच्चों को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती. They are dependent on me for their ऑफ bread and कोर्स। butter. I यस। have to give them salaries. I cannot say कि I cannot give you money because I am not able to earn. I was still accountable to those people who were working for me for the last 2 or 3 years. They were very dedicated, trustworthy people. They were. तो मैंने क्या किया, मैंने होम विजिट्स को उसको कन्वर्ट किया। वी बॉट ऑल द प्रिकॉशनरी आइटम्स लाइक डिस्पोजेबल गाउन्स, डिस्पोजेबल नैपकिन्स एंड कोविड डिस्पोजेबल प्रोटोकॉल्स। एवरीथिंग। वी फॉलोड एवरी प्रोटोकॉल। और वेडिंग्स उस टाइम पे भी हो रही थी, ऑल द क्लोज वेडिंग, मतलब बहुत क्लोज और वैसी वेडिंग्स हो रही थी, बट हो रही थी। सो उस समय ही मेरा बिजनेस मॉडल जो है वो स्टूडियो की जगह वो होम विजिट्स और फ्रीलांसिंग की तरफ ऑलमोस्ट टर्न हो गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि काम नहीं था, काम था, बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा काम था, क्योंकि मेकअप्स हो ही रहे थे, प्री वेड शूट्स भी हुए हैं उस टाइम पे, और बट वेडिंग्स ओनली भी। ओनली ड्यूरिंग द कंप्लीट लॉकडाउन वहां पे थोड़ा सफर हुआ होगा आई गेस। यस, जैसे यस। जैसे लॉकडाउन खुलता गया फिर तो ऑफ कोर्स वो थिंग्स वर बैक टू द प्लेस, बट हाँ वो एक चैलेंजिंग टाइम रहा होगा, राइट? और मेन मेरे को ऐसा लगा चैलेंजिंग टाइम वो भी नहीं था, जैसे कि जब लॉकडाउन हटा एकदम से पीपल वर आउट, सबको हेयर कट्स कराने हैं, सबको अपना यस हेयर यस यस। कलर कराना है, एकदम से काम में ना बूम आया। हाँ बूम भी आया हो, राइट राइट राइट। बहुत बूम आया, मतलब बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स, और उसमें प्रोटोकॉल्स की वजह से हमें क्या होता था, अपॉइंटमेंट बेसिस पे हम लोग काम कर रहे थे कि 10 to 11 में somebody is inside the salon, हम किसी और को अंदर वॉक इन तो अलाउड ही नहीं थे। तो हर चीज के पीछे एक अच्छाई होती है, उसकी अच्छाई ये रही कि वॉक इन सिस्टम जैसे रुका ना, तो एक सिस्टमेटिकली हमारा स्केड्यूल बनता चला गया कि 10 to 11 में से गुप्ता इज कमिंग, 11 12 somebody else is coming। हमारे लिए उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, एंड दैट इज हाउ वी लर्न हाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन दिस इंडस्ट्री। और उसके बाद धीरे धीरे आई रियलाइज की, क्योंकि मैंने कभी सैलून वर्क पर्सनली कभी नहीं किया, ब्यूटी हेयर आई डिड नॉट डू एनीबॉडीज, आई वाज ऑलवेज एन ओनर, आई डिड नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकअप। So I realized कि makeup is my forte and I am just enjoying doing makeup, and I'm traveling, I'm going and doing makeups, then why am I having the setups? या And then I made a call, I shut down my all of the branches, and then I converted my entire business model into freelancing. And also with time जो makeup industry है ना वो बहुत ज्यादा evolve हुई है। पहले पार्लर्स होते थे, फिर सैलून्स होने शुरू हुए, फिर स्टूडियोज होने शुरू हुए, फिर अब जो नई जनरेशन है ना उन लोग क्या कर रहे हैं, मेकअप कोर्स किया, अच्छी जगह से किया, एफिलिएशंस लिए, अच्छी वैनिटी बनाई, ना ट्रैवलिंग फॉर वर्क। और क्योंकि अब जो मेकअप इंडस्ट्री है वो दिखने में इतनी फैंसी लगती है दैट यू ट्रैवल फॉर वर्क, आपको अकोमोडेशंस मिल रहे हैं, आपको हाँ फ्लाइट्स हाँ मिल हाँ। रहे हैं, और आप राइट राइट। स्टोरीज बना रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, आप फेमस हो रहे हो। तो बहुत ज्यादा लोग हैं who are entering into this market. There are a lot of people. The challenges being a salon owner हमने फेस किए, they even don't know about it. They don't have even experience about it. राइट एंड राइट। क्योंकि आपको हमेशा चैलेंजेस के साथ डील करना आना चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम डाइवर्सिंग माय वेंचर इनटू मेकअप एजुकेशन नाउ। यस। जैसे पीपल आर, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, दे आर सेलिंग मेकअप एजुकेशन। आप प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, हम आपको इतने लाख रुपए महीने का बना देंगे, आप इतने लाख रुपए महीने कमा पाएंगे। सो आई हैव वर्कड ऑपोजिट डायरेक्शन में कि आप आइए, हम आपको पैसे बचाना सिखा देंगे। कम, लर्न, सेव एंड स्ले, दिस इज द टैगलाइन, कि हम आपको पैसा कमाना नहीं सिखा रहे, हम आपको पैसा बचाना सिखा रहे। बचाना सिखा रहे हो, और एक सही तरीके से अवेयरनेस भी है, क्योंकि क्या होता है ना शादियों में खर्चा वर्चा होता है वगैरह, आप यू आर स्पेंडिंग इन द राइट रिसोर्सेस। एग्जैक्टली, एंड वंस यू हैव द वैनिटी, यू हैव द स्किल, दैट इज फॉर द लाइफ टाइम। एक बार आपने ड्राइविंग सीखने पे पैसा लगा दिया, आप दोबारा तो ट्रेनिंग नहीं लोगे। ऑफ कोर्स।
This is going to help you lifetime. Makeup skill is like this only. And then you do not have a fear कि जो मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं वो कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कौन से टूल यूज कर रहे हैं, ब्लेंडर्स क्लीन है कि नहीं है, सेंसिटिविटी इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे. आपको किसी बात की घबराहट ही नहीं. आप एन नंबर ऑफ टाइम्स मेकअप अपना कर सकते हैं. मतलब इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी फीमेल. दैट्स हाउ आई. Right. सही कहा बिल्कुल. So anyways, one more thing, like your suggestion, your message to all those people, like all the beginners or freshers, I will use the right word, जो मेकअप में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको आज के समय में, बिकॉज कंसिडरिंग जैसा आपने अपना तजुर्बा बताया कि यू रियलाइज कि हाँ ये तो होता है ना कि जैसे ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, तो जो उसमें कदम रखना चाह रहे हैं इन दिस डिजिटल एज, उनको आप पर्सनल सजेशन क्या देना चाहोगे? टू एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट मैं यही कहूंगी कि जितना फैंसी ये दिखता है मेकअप इंडस्ट्री, एक्चुअल में उतना नहीं है. वंस यू स्टेप इनटू इट, आप इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि आपको बहुत मेहनत करनी. मेहनत इन टर्म्स में, आप एक स्टूडियो होता है ना, उसका एक अपना कंफर्ट है कि सामान आपका लगा हुआ है, स्टाफ इज देयर, आपको बस जाना है मेकअप करने. बट व्हेन यू एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, आपको अपना वैनिटी खुद कैरी भी करना पड़ेगा. अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए कितना आपको स्ट्रगल, हार्ड वर्क है. प्लस आप डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो, एवरी टाइम देयर इज अ न्यू लोकेशन. आप गूगल पे खो भी सकते हो, आप गूगल को फॉलो कर रहे हो, आप गलत गलियों में भी जा सकते हो. दैट टेक्स एक्स्ट्रा पेन, एक्स्ट्रा एफर्ट. किसी का घर टॉप फ्लोर पे हो सकता है, उस अपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं हो सकती है, आपको वैनिटी वहां तक कैरी करके लेके जाना पड़ेगा. हो सकता है वहां पहुंचने के बाद क्लाइंट आपको बोले मैं अभी हेड वॉश करके आ रही हूँ, मैं अभी नहा कर आ रही हूँ, आप प्लीज बैठ. आपको वेट करना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि हम जा रहे हैं, विल नॉट सर्व. सो ये जितना फैंसी दिखता है ये तब होता है जब आप कम से कम 3 to 4 years इस इंडस्ट्री में उस तरह की मेहनत करते हो, जब लोग आपके काम की वजह से आपको बुलाते हैं. तब ये वाला स्टेज आता है कि वो आपके नखरे सहते हैं, कि आपके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी बुक करेंगे, आपको अकोमोडेशन देंगे, आपको फ्लाइट टिकट देंगे. बट एज अ बिगिनर आपको कुछ नहीं देंगे, आपको सिर्फ कन्वेंस भी नहीं देंगे. वो बोलेंगे कि कन्वेंस किस बात के है, मेकअप चार्जेस हम दे तो रहे हैं. हो सकता है आप उनके घर जाएंगे, उन्होंने एक मेकअप के लिए बुकिंग कराई है, दूसरे रूम में कोई और फीमेल बोलेंगे जरा सा उनका ये काम करके आ जाओ यार, वो रूम में अंदर चले जाओ, जरा सा मम्मी जी की साड़ी ड्रेप कर दो, जरा सा हेयर कर दो. आप मना नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपको अपना क्लाइंटेल बनाना. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस. दिस लुक्स वेरी फैंसी, बट आफ्टर अ सर्टेन n number of years, after spending those much years in this industry, it is fancy. For initial stage so it's a sport. Of course, एब्सोल्युटली ट्रू. शुरुआत में कोई भी चीज में शुरुआत होती है तो वहां पे देयर आर ऑफ कोर्स. एंड वन मोर थिंग, मैं आई एम एडिंग टू दैट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डू यू बिलीव इट्स अ जेनरिक, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मेकअप, डू यू थिंक कोविड हैज कंप्लीटली चेंज द इकोसिस्टम? ऐसा लगता है कि आज के समय में बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड इस तरह का एक हो गया कि जैसे पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया. जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, जैसा आपने अपने बताया था कि पहले आप ऑफलाइन जैसे सलून या जैसे पार्लर हुआ करते थे, अब आप ऑन रिक्वायरमेंट होता है जब कोई जैसे बिजनेस आता है. तो एनी इनसाइट्स ऑन दैट, एनी एक्सपीरियंस यू वुड लाइक टू से ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? आई थिंक डेफिनेटली इस पेंडेमिक ने ना लोगों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है, ऐसा मुझे लगता है. सिस्टमैटिक हुए हैं लोग, बहुत सारी चीजों से घबराए भी हैं तो उसके सोल्यूशंस भी निकाले हैं. जैसे पहले लोग बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव नहीं करते थे कि सडनली कुछ ऐसा होगा जो सब खत्म हो जाएगा. अब हमारी जनरेशन ने वो भी एक्सपीरियंस कर लिया कि सडनली कुछ ऐसा हुआ कि सब खत्म हो गया. एक ऐसा स्टेज भी आता जब हमें लग रहा था कि हम भी सर्वाइव नहीं करेंगे. दिस इज स्प्रेडिंग, और जैसे सबकी खबर आ रही है एक एक करके वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू सर्वाइव. सो दिस इज बिगेस्ट ब्लेसिंग, वी आर सर्वाइविंग आफ्टर दैट डिजास्टर. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया. यस. मैं पैसों की अगर बात करूं, बहुत जगह मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन सिस्टम आया ही उसके बाद है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के चलते. अभी पहले क्या होता था, खुले पैसे नहीं है भैया, जरा 100 रुपए के खुले देना, रिक्शे वाले को पैसे देने, भैया जरा खुले देना. अब वो पंगा ही नहीं है, इवन रिक्शे वाले के पास भी QR कोड है, यूपीआई एवरीथिंग. हाँ, यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट. आपको कैश कैरी, पहले चोरियां बहुत होती थी वॉलेट्स में, पीपल यूज्ड टू कैरी कैश, क्योंकि आप कहीं शॉपिंग जा रहे हो, वेडिंग की शॉपिंग जा रहे हो, आप कैश लेके जा रहे हो, यू आर नॉट कैरिंग एनी कैश. आप ट्रैवल पे जा रहे हो, यू आर नॉट कैरिंग एनी कैश. सो मेरे को तो लगता है ये बहुत बड़ी सुविधा अब हमारे लिए भी. एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम कहीं जाते हैं, एडवांस पेमेंट वैसे तो कोई आपके पास देने नहीं आएगा ना एडवांस. लेट्स सपोज इफ आई हैव अ ब्राइड फ्रॉम कर्नाटक, शी विल नॉट कम हियर टू गिव मी द एडवांस. But just because this facility is there in the market, I can receive my advance amount and I can block the dates for her. Of course. Similarly, once I'm done with my work, मैम पेमेंट करा दीजिए. पहले होता था अरे कैश अंदर रखा है, अभी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद कल हम तुम्हें दे देंगे, अभी सबके सामने लॉकर नहीं खोल सकते. There is no problem now. I ask my people, आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, मेरा काम खत्म है, अपने घर जाऊँ.
प्लस ऑनलाइन में जितना आप जूम मीटिंग्स के थ्रू, लाइक वी आर आल्सो Of course, कंडक्टिंग, we are connected on Zoom. अदरवाइज यू आर फ्रॉम सम अदर स्टेट, आई एम फ्रॉम सम अदर स्टेट, अगर हम ऑफलाइन बेसिस पे ट्राई करते हैं मिलने का तो ये पूरा एक हसल हो जाता है और एक बहुत हासिल लंबा हो जाता है. प्रोसेस. सो डेफिनेटली आई फील कि ये बहुत अच्छी चीजें इस डिजास्टर ने हमें सिखाई है. मतलब टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई. अब प्रोडक्टिव हो सकते हैं. वो जो टाइम हम ट्रैवल में लगा रहे हैं, आने में जाने में, लेट्स सपोज मुझे किसी क्लाइंट से, जैसे ब्राइड्स हैं दूर की, एक कीनिया की मेरी ब्राइड क्लोज हुई है, अब मैं उधर नहीं जा सकती ना उनके फेस एनालिसिस के लिए, वो भी इधर नहीं आ सकती, तो वाया वीडियो कॉल भी कनेक्टेड. आई हैड डिटेल अबाउट हर, सब डिस्कशंस हो गए एंड द ब्राइडल बुकिंग इज क्लोज्ड. So of course, convenience and no geographical boundary और जो हमने सोचा नहीं था पहले वो भी चीजें हो रही है. And people have become more open-minded now कि क्या हो सकता है. Right. I think becoming famous is also that has also become easier now, because social media पे जब सब लोग आपको देखते हैं, people watch your stories, people watch your reels, तो कहीं ना कहीं आपकी मतलब नेम फेम गेम जिसको मैं बोलती हूँ, वो स्ट्रांग हो रहा है थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू ऑनलाइन थिंग्स. वो ऑफ कोर्स जो स्टेटस स्टोरीज प्लस आप जो डालते हो उस पे, तो वहां से ऑफ कोर्स आपकी एक ऑडियंस बननी शुरू हो जाती है. एग्जैक्टली. जो मे बी दे विल ऑफ कोर्स अवेल योर सर्विसेज, दे विल परचेज योर प्रोडक्ट. इस तरह से मतलब एक बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव तरीका है ऑनलाइन की, एंड स्पेशली सोशल मीडिया. राइट. yes, absolutely. Okay, so anyways, well, it was great to have you on this podcast. It was a great conversation to know about your journey, to know about so many insights and about the आपने उस जैसे होता है ना बीच में कोई चैलेंज आया, जैसे मैं स्पेसिफिकली कहूँगा क्योंकि हर किसी के लिए था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि कोविड में कैसे आपने अपने आप को वो किया, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था जानने के लिए. सो यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so very much, and I had a great time participating in your talk show, which is the HJ Show. And thank you so much for having me here. Thank you so It was much. a complete my pleasure.